School life is a cluster of memories which we keep throughout our life. Hello everyone, this is a mixed feeling for all of us as this is a very happy yet sad moment as they are now in the hunt of their destination, and on the other hand we will be separated from our lovely seniors. So today we, the student of class 12 Science and Commerce, are going to present this beautiful piece of token of love to all our seniors. Thank you. Reading a farewell is always tough. Words never prove to be enough. You will remain forever in our school history for your glorious activities. You did something that makes our school proud. Now, you are on a ship that sails you to the voyage of new opportunities. We wish wherever you go, you would do the best as you did here. Wish you success in your life and may you achieve your goals and make our school proud. Thank you and happy journey. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. Everything will be alright. And sing, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of every day we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. Do 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 do. Hello everyone, this is Raghav Chaudhary, and today on the occasion of farewell I would like to dedicate a song to all my seniors, and here it is. तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो अब ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं।
Thank you and all the best for your future. Respected courtesy, principal sir, teachers, all everyone who is watching this. Good morning. Myself Adil Vishwakarma of class 12th A considered myself fortunate to have a speech on this farewell. It is sad moment for our that we all are separated from shadow of the seniors. Although there is very happy moment for the seniors that their school studies are completed and next they will be brightening their careers. I would like to congratulate all the seniors for their journey in the school. They must having a good and the ordinary memories in the school, such as forgetting to do work, making excuses and promising to do next time, eating lunch from the others, gossiping in running classes, waiting for a games period, and winning a event and getting a prize and showing them to their friends. I have also some good memories with them. Our seniors made us realize that to achieve a maximum responsibilities towards society, country, our education, and trying to inculcate some good habits and knowledges. I am very grateful to have a seniors like them and for their supports in every and any situation. I wish them a very happy and bright career. Thank you. Ladies and gentlemen, your host for tonight's show, Hello everyone, this is Aditya Dixit, your host for the show Quick Chats with Aditya. So let's start the show. आज हमारे इस शो पे हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं कुणाल पाटिल, ध्रुव पाटिल और अभिजीत दास. आप सबको गुड आफ्टरनून. तो शो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो कल आपका एग्जाम था, तो होप वो बहुत अच्छा गया हो. हाँ बहुत अच्छा गया था. हाँ अच्छा गया था. तो चलिए फिर शो शुरू करते हैं. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी जो स्कूल लाइफ है उसकी जर्नी को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, मतलब स्कूल लाइफ के बारे में कुछ बताइए. पहले तो अगर हमें ये 12 इयर्स की अगर जर्नी को डिस्क्राइब करने बोले तो वो इम्पॉसिबल टाइप ही हमारे लिए, पर अगर है तो उसको हम एक ही वर्ड में बोलेंगे कि इट वाज ब्यूटीफुल. काफ़ी टाइम मतलब 12 साल की बात है, तो 12 साल बिताए इस साल में, तो ये मुश्किल है कि ये स्कूल लाइफ को हम कैसे डिस्क्राइब कर पाए कुछ समय. तो मैं एक ही वर्ड बोलूँगा इसके लिए, इट वाज द अनफॉरगेटेबल प्रीशियस मोमेंट फॉर मी टू बी इन दिस स्कूल, जो कि एक ज़िंदगी का अहम हिस्सा रह चुका है. और यकीन नहीं हो रहा कि पहले से लेके 12वीं तक कैसे 12 साल निकल गए हमने स्कूल को दिए. मुझे आज भी याद है, हमने 7 जुलाई को मैंने स्कूल में एडमिशन लिया था, फर्स्ट डे था मेरा, और वहाँ से आज तक की डेट में 12th तक कंटिन्यू करना और इस लाइफ को जीना इज ग्रेट. अभिजीत वो भी केवल तो बहुत ही. हाँ ये भी है. अगर मुझे डिस्क्राइब करना एक वर्ड में तो होगा रोलर कोस्टर. कि इस जर्नी में बहुत सारे अप्स थे, डाउन थे, लेकिन हम टिके रहे, हम आखिर तक आ गए. वी आर द फिनिश लाइन. अब बस एग्जाम देना है और जीत जाएंगे हम. मतलब एक तरीके से हार जाएंगे तो स्कूल लाइफ खत्म हो जाए हमारी. जीत जाएंगे, वी विल विन. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट वर द टॉप 3 थिंग्स यू लर्न इन दिस वंडरफुल जर्नी ऑफ द स्कूल लाइफ. कौन से वो 3 पल थे या फिर 3 मेमोरीज जो आपको बहुत सिखाती है, और 3 चीज़ें क्या है जो आपने अंदर इनहेरिट किया है जो पूरी लाइफ आपके काम है. Be confident to talk with new people, and then second leadership, और थर्ड हमेशा अपने आप को पुश करो कुछ एक्सप्लोर करने के लिए. कुणाल इस स्कूल से तो काफ़ी कुछ सीखने मिला है. जो ऐसी यादें काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन वो भूलना नहीं चाहिए. सबसे बड़ी बात तो थी जो थी वो स्टेज फियर थी, जो कि मेरे हिसाब से हर बच्चे में होती है जब वो छोटा होता है, ताकि उस टाइम हमें ये पता नहीं रहता कि हमें करना क्या था वैसे. और इतनी बड़ी ऑडियंस को या फिर अपने सामने ऑब्जर्वर्स को इतने लार्ज नंबर में होना और हम स्पीकर बनना,
वो थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है बचपन में, ऐसा लगता ही है। लेकिन वो सबसे बड़ा स्टेज फियर का इशू था जो मेरे दिमाग से भी निकल चुका है। और बाकी काफी सारी चीजें हैं जो कि अब काफी अच्छे पहले तो क्या था कि दोस्त बनाना मुश्किल होता था, यानी बचपन में पता नहीं था कि कौन कैसा दोस्त है। अब तो सब पता भी होता है और अच्छे से मतलब ये भी पता चल जाता है फिर कैसे बॉन्डिंग वगैरह रखनी है, यानी फिर फ्रेंडशिप के साथ फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं, उनके साथ कैसे बातचीत करनी है, बिहेवियर हमें पता चलता है। स्कूल से हम लोग बेसिकली ये ज्यादा सीखते हैं। फिर कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, फिर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली तो वो कैसे उसको लीड करना है। ऐसी काफी सारी चीजें हैं और टीम अप करके अगर करे तो फिर कोई भी काम आसानी से हो सकता है। ये सारी चीजें जो थी वो बेसिकली हमने सीखी थी। बहुत बढ़िया। अभिजीत आप बताएं। अगर वो 3 चीज़ें जो मैंने सीखी हैं वो होंगी कि पहला कि डर से कुछ नहीं होता, यू शुड हैव नो फियर। दूसरा कि रिलेशंस बनाने चाहिए कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है बट मेकिंग रिलेशंस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। और तीसरा कि कॉन्फिडेंट रहो। बस ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मुझे भी लगभग 12 साल हो गए हैं स्कूल में। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक पर्टिकुलर मेमोरी एक ऐसी रह जाती है जो कि बहुत हमेशा याद रहती है। तो आपका मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था इस स्कूल जर्नी? कुणाल आप पहले बताएं। 12 साल की बात है तो उसके अंदर एक मेमोरी तो होगी नहीं दरअसल। ऐसे काफी सारी इवेंट्स थे जो और कैसे मोमेंट्स है जो कि अनफॉरगेटेबल है। जैसे कि हम लोग ने 10th का जो था बैच वो काफी यादगार था और उस टाइम के जो आखिरी के जो कुछ महीने थे वो काफी अनफॉरगेटेबल थे। और प्राइमरी सेक्शन भी एक काफी अच्छा मोमेंट था। मतलब उस टाइम हम लोग उसमें रहते थे तो हमें बच्चे थे तो हमें ये सब याद है अभी भी कि हमने कैसे उसे एंजॉय किया है। उस टाइम पीरियड की यादें बहुत अच्छी लगी। फिर हमने सेकेंडरी में भी वैसे ही यादें बनाई। काफी सारे मोमेंट्स थे जैसे कि एक तो टीचर्स डे अभी लेटेस्ट हुआ था, वो हमें काफी अच्छे से लगा था। फिर हमने जो अभी बातचीत हुई थी यानी मतलब टीचर्स हमसे कैसे का इंट्रो मतलब हमने कम्युनिकेशन करते थे, कैसे बातचीत करते थे, यानी हमें डाउट वगैरह क्या हो तो फिर उससे बताने के लिए कैसे बताते थे, मीटिंग्स होना, ऐसे काफी सारी चीजें जो थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी और वो काफी अच्छी भी थी। अभिजीत आप तो एक मेमोरी अगर वो होगी तो 5th क्लास में एक स्टेट कंपटीशन था चिल्ड्रंस डे के दिन। तो उसमें मैं ग्रुप का लीडर था। तो हम लोगों ने मतलब उस दिन बहुत अच्छा स्टेट किया था और हम लोग उस दिन जीतते थे। तो वो मतलब मैंने फर्स्ट टाइम किसी स्टेट में पार्ट लिया था और जीता भी थे। हम लोग फर्स्ट आए थे, मतलब मेरी हाउस फर्स्ट आई थी। तो वो काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट था। दूसरा कि मतलब यूएस के बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन था हमारा। तो वो भी एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट था। वो प्रीति हमने अरेंज किया था जब वो यूएस गई थी। वो एक अच्छा मेमोरेबल मोमेंट था। हाँ, जैसे कुणाल ने बोला हमें जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी में आए थे, स्विचिंग फ्रॉम पेंसिल टू पेन वो स्पेशल फॉर मी। और फिर जैसे अभी जस्ट टीचर्स डे की बात हुई तो टीचर्स डे के अंदर मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी कोई शो होस्ट कर पाता। पर जैसे अभिजीत और मैंने डांस भी पहली बार किया था स्टेज के ऊपर सेकेंडरी में आके। ऐसे मैंने प्राइमरी में एक बार किया था तो इट वाज तब मैं छोटा था तो पता नहीं चलता था। पर अभी ग्रोन अप के बाद पता ही होता है कि सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए। इसलिए हमने कुछ एक स्मॉल पीरियड के अंदर वो डांस ट्राई किया था और वो सबको बहुत पसंद आया था। और हमने वैसे ही पीटी में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि तुम जाओ, तुम्हें होस्ट करना है और तुम अच्छे से करोगे। तो दैट वाज स्पेशल फॉर मी। अभी हमने बेस्ट मोमेंट की तो बात कर ली, पर कुछ मोमेंट ऐसे भी होते हैं जो हम चाहते हैं कि वो कभी ना होते तो ही अच्छा होता। तो ऐसा कोई मोमेंट आपका स्कूल लाइफ में? एंडिंग ऑफ स्कूल आफ्टर 12। ये तो सबसे बेस्ट। सेम फॉर मी। कुणाल आप? ऐसा तो काफी सारे मोमेंट, जितनी अच्छी यादें होती है उतनी बुरी यादें भी होती हैं, लेकिन वो बुरी यादों को भी ध्यान में रखकर हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए वो बात भी सीखनी पड़ती है। सबसे पहले ऐसे काफी मोमेंट्स थे जो हमारे साथ मतलब अनफेवरेबल थे। उनमें से एक था जो यानी काफी सारी चीजें जो थी हमारे अंडर में नहीं, मतलब हमारे बस में नहीं थी, यानी हम जितना भी चाहे हम अच्छा कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे जो निकल आए। फिर भी हमने काफी कुछ ट्राई किया लेकिन वो स्पेशली ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। फिर सबसे बड़ी बात जो थी वो अगर कुछ गलत होता है तो हमें उसे भूलकर आगे भी बढ़ना चाहिए, लेकिन एक बात ये भी होती है कि उस गलती जो हमने की है उसको हम लोग को सीख कर आगे कैसे बढ़ना है, फिर उसको कैसे अगले टाइम उससे बेहतर कैसे करना है वो हमें जानना भी होना चाहिए, यानी ये हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे तो काफी है लेकिन ये सब भी इम्पोर्टेंट है। मुझसे अगर कोई पूछे अगर स्कूल लाइफ का कोई पार्ट तो मैं तो वो पैंडेमिक वाला पार्टी बोलूंगा कि वो ना होता तो ही अच्छा।
अगर मुझे मौका मिला कि मैं टाइम मशीन में पीछे जाके ब्लॉक को वापस घुमा सकता हूँ तो मैं पैंडेमिक को होने नहीं देता। हाँ सही बात। अच्छा, तो आपकी भी लाइफ में बहुत सारे फियर होंगे, बहुत चैलेंजेस होंगे जो कि इस स्कूल लाइफ में आपको ओवरकम करने का मौका मिला होगा, तो ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? बताएं। आई थिंक हम तीनों का एक ही होगा फियर, वो था स्टेज फियर। क्योंकि हम वो तो हर स्कूल में चाइल्ड होता है स्टेज फियर, हम लोगों ने ओवरकम किया और हम लोगों ने इवन होस्ट भी किया गवर्नमेंट। कुणाल ने स्पीच दी थी टीचर्स डे पे, तो वो एक्चुअली मतलब वो हमारे लिए माइलस्टोन था कि हम लोगों ने पूरे सबके सामने ये मतलब करके दिखाया था, तो वो मतलब हमारे लिए स्पेशल मोमेंट था। सबसे पहला दिन स्कूल का जब हमारे सामने हमारी तरह पर दूसरे 39 और बच्चे थे और हम सब में से एक थे और आगे जाके इनके साथ हमें आगे पढ़ना था, तो उनके साथ फ्रेंडशिप और वो बिल्ड करना, उससे बात करना। कुणाल आप मेरी तरफ से देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं तब हमें ये पता नहीं रहता कि टीचर्स हमारे भी काफी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, यानी वो भी हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं। जैसे जैसे टाइम चला जाता है वैसे हमें पता चलता है कि टीचर्स भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारा अच्छा चाहते हैं, और उनके साथ बॉन्डिंग बन जाना, मतलब एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ में। तो ये किसी भी अचीवमेंट से कम नहीं होता, क्योंकि अगर एक टीचर को अगर एक बच्चा अगर अच्छे से याद रखे, उसे अपने सक्सेस के पीछे का रीजन अगर माने, तो वो काफी हद तक काफी सारी चीजें अचीव कर चुका होता है। ऐसे हमारी लाइफ में भी काफी टीचर्स आए थे और उनमें से कुछ टीचर्स जो थे वो एट प्रेजेंट तो नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा है किसी ना किसी मोड से, चाहे वो वर्चुअली हो फिजिकली हो। सो ये बात भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल कि आफ्टर 12 व्हाट इज आफ्टर 12, मतलब आप 12 के बाद अब क्या, आपका क्या लाइफ का नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभिजीत आप बताएं। बताऊं तो मैं कभी वो प्लान करने वाला बंदा था ही नहीं, मतलब मैंने कोई प्लान नहीं किया है। उसके बाद मैं बस स्लो पे चलता रहता हूँ। तो अभी तो मेरा पूरा फोकस तो बोर्ड्स पे ही है। अब बोर्ड्स के बाद मैंने मेडिकल का फॉर्म भरा है, तो अब देखते हैं वो एग्जाम कैसे जाती है। बाकी ऑप्शंस तो हमारे पास होने चाहिए, हम एक ऑप्शन रखने से तो फायदा नहीं है, मतलब ऑल्टरनेटिव्स तो होने चाहिए ऑफ कोर्स। तो और भी ऑल्टरनेटिव सीयूटी एग्जाम है, वो उन सबका फॉर्म भी भर दूंगा। जस्ट आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। कुणाल आप बताएं। दरअसल मैंने पहले इंजीनियरिंग का थॉट रखा था अपने माइंड में, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने फिर मेरे भाई से रेफरेंस लिया, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि नीट भी देखकर अगर मेडिकल फील्ड में जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मैंने ट्राई किया, मैंने सोचा कि चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो 11th में आके मैंने साइंस स्ट्रीम में मैंने बायो ले ली। मुझे पता चला 12th में कि एक बायोटेक्नोलॉजी का भी एक ऑप्शन होता है काफ़ी अच्छा। सो मैंने वो दोनों ऑप्शन एक बार रखे थे माइंड में, यानी नीट भी की एग्जाम में अपीयर होना, उसको क्रैक करना। एक तो फर्स्ट थिंग हो गई डॉक्टर के लिए, डॉक्टर बनने के लिए पहला स्टेप, और दूसरी जो चीज़ होती है मैंने सेकंड ऑप्शन के लिए बायोटेक्नोलॉजी का भी प्लान किया है। अब अगर काफ़ी हद तक मैं, लेकिन ये डिसीजन जो होगा नीट के एग्जाम के बाद फाइनलाइज करूँगा, ताकि उससे काफ़ी अच्छे से मुझे रिग्रेट ना करना पड़े पीछे, ताकि मैंने क्यों नहीं दिया, ये ऐसा ना हो। इसलिए लाइफ में भी एक मौका देना चाहिए। सो इम्पोर्टेंट थिंग है, सो डिसीजन मेकिंग भी अच्छे से होनी चाहिए। और अगर मेरे बारे में बात करूँ तो मेरा एक गोल जो है, जो ड्रीम है, वो पहले से मेरा और मेरी मम्मी का चाइल्डहुड। जैसे मेरी बर्थ हुई थी, मैं मम्मी ने मतलब मदर ने बोल दिया था कि तो मैं डॉक्टर बनवाऊंगी। और फिर मैं जब से छोटा हूँ, मेरे को भी डॉक्टर बहुत पसंद है। मतलब कोई चोट वोट लग जाती थी तो मुझे इतनी सारी बैंडेजेस चाहिए होती थी जो ज़रूरत नहीं है, फिर भी मुझे लगा। और फिर ऐसे कैसे मेरे दोस्तों ने बोला कि हम सब ने नीट का फॉर्म भरा। पहला हमारा टारगेट वही है कि हम नीट करेंगे, और फिर आई एम एडवेंचरस पर्सन कि उसको कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना होता है। तो फिर अभी तक एक्सपीरियंस मेरा है डॉक्टर बनना, तो उसके बाद अगर मैं क्या करने वाला हूँ मुझे नहीं, मैं समथिंग न्यू ट्राई करता रहूँगा। मतलब यहाँ पे सभी डॉक्टर्स हैं मेरे अलावा। अच्छा चलिए, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, आप रिलैक्स हो सकते हैं। बस एक छोटा सा क्वेश्चन कि आप अपने जूनियर्स, मैं हो गया और भी सब सारे जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपनी इस जर्नी के एक एक्सपीरियंस? कोई भी देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि हमेशा अपने अंदर से जितना भी डर होता है, यानी चाहे वो कोई भी फियर हो, किसी भी टाइप का फियर है, वो हमेशा के लिए हमें छोड़ना चाहिए। उसको कैसे ओवरकम होके कैसे प्लानिंग होनी चाहिए, सब फाइनल होना चाहिए। फिर डिसीजन मेकिंग जो स्किल होती है वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा गेन कैसे करनी है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे मिले तो वो भी कैसे हम लोग को फॉलो अप करनी है, कैरी ऑन रखनी है।
ये सब भी होता है। और फ्रेंडशिप जो होती है, फ्रेंडशिप को मेंटेन रखना भी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और साथ ही साथ जो मैंने बताया था, टीचर्स के साथ रिलेशंस, यानी अच्छे रिलेशंस रखो तो वो भी हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होता है। और जो सेकंड थी और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है वो है कि जो टाइम पीरियड जो हम लोग स्कूल में जी रहे हैं उसको एकदम अच्छे से अनफॉरगेटेबल मेमोरी बनाए। जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा इस लाइफ को एंजॉय करें, ना कि ऐसे वेस्टेज में, कंप्लेंट्स में या फिर कोई गलत काम करके वेस्टेज ऑफ टाइम में इंपॉर्टेंस ना देकर अगर उस मोमेंट को हम एंजॉय करें तो वो काफी हद तक सक्सेसफुल लाइफ का एक पार्ट भी होगा। प्लस उससे जो हमने सीखा है वो आगे चल के हमें काफी हद तक हेल्प करेगा किसी भी चीज का अचीवमेंट के लिए। सो यही बात थी। थैंक यू। ध्रुव, आप कुछ कहेंगे? मेमोरीज बनाते रहना। ध्रुव, आई थिंक आपका कोई नेटवर्क इशू है। तब तक हम अभिजीत से कंटिन्यू करते हैं। मुझे को एडवाइस देने तो मैं सुना तो सिर्फ तीन प्रिंसिपल्स बोलूंगा। पहला, नो फियर। सेकंड, नो प्रोक्रेस्टिनेशन। तीसरा, एंजॉय द जर्नी एंड गो विद द फ्लो। बाकी सब बढ़िया हो जाए, टेंशन मत। लगता है ध्रुव डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए, तो आपने मेरे शो को ज्वाइन किया, मेरा पहला एपिसोड कह सकते हैं इसे। थैंक यू। और आपको अपने आने वाले एग्जाम्स और नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट विशेस मेरी तरफ से और पूरे स्कूल की तरफ से। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शुभ प्रभात। आज मैं और कोमल कक्षा 12वीं अ की छात्राएं आपके समक्ष कविता लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत। आपके साथ बिताया हर एक लम्हा है यादगार, जो पल गुजारे आपके साथ वो सब बीते शानदार। आपकी याद ताउम्र संजो कर रखेंगे हम, याद जब भी आएगी आपकी आंखें हो जाएंगी नम। अगर अनजाने में हुई हो हमसे कोई गलती तो कर देना हमें माफ, बस दिल से भुला देना हर एक कड़वी बात। हम सब करेंगे आपको तहे दिल से याद, क्योंकि आप हो हमारे लिए बेहद खास। यही शुभकामनाएं हमारी, आपकी खुशियाँ यथावत रहे जारी, कोई भी गम आपको छूने न पाए, जिंदगी आपकी फूलों की तरह महकती चली जाए। खुशियाँ आपकी कदमों में जारी रहे बार बार, जिंदगी में आपकी खुशियों की रहे बौछार। माना आप अभी जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन अपने दिल से हमें कभी ना भुलाना। हो सके तो हमसे मिलने चले आ जाना, और कभी अगर आ जाए याद तो फ़ोन में हमारा नंबर घुमाना, और इसी तरह हमेशा खिलखिलाना। धन्यवाद। A very warm good morning to everyone gathered here today on the occasion of farewell. I am fortunate enough to get these opportunities to bid farewell to our beloved seniors. Farewell parties are always harder and become an emotional roller coaster as we cherish all the bittersweet memories in the campus with you all. You made this journey simple for us from the very first day. I would like to congratulate all the seniors for their nice and happy journey of a career. I wish them all for a bright career very soon. I would like to conclude by wishing you all the best for your future endeavors, and that success will come true soon because of their hard work. Thank you. The time for us has finally arrived to say adieu. It is joy mixed with sorrow to say goodbye to you. In you we have sought to insist the best. You go forward alone but not rest. For you has been taught up to this day, for lifelong journey come what may. As a group we all graduate, to one another we all congratulate. Seek up to be the best you can forevermore, as today you pass to a new door. Remember all your friends gathered here today, for they has been a part of your along the way. So finally, last time I wish you all goodbye.
रास्ता मंजिल को दिखाने वाला एक खूबसूरत सफ़र था। कोई दूसरा नाम मत देना उसे, वो सबका दूसरा घर था। हाय, आई एम वर्षा फ्रॉम 12th साइंस। आज मैं अपने सीनियर्स के लिए कुछ लाइनें लेके आई हूँ जिससे वो रिलेट कर सकते हैं। तो पहले स्कूल जाने से डर लगता था, फिर समय ऐसा आया जब घर पे बैठे रहना बोरिंग हो गया और स्कूल जाने का मज़ा ही कुछ और था। ये समय लगता है जल्दी बीत गया, एक बार फिर से जीत गया। कहाँ मिलेगी इस स्कूल के फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाना, वो स्कूल की ड्रेस में रोज़ स्कूल आना, वो स्कूल की सीढ़ियाँ जहाँ जमती थी महफिल, उन सीढ़ियों का स्टेज भी आज खाली करना पड़ गया। आज आ ही गया वो मोड़ जहाँ अलविदा कहना पड़ गया। पनिशमेंट मिलने पे डर लगता था घर तक फ़ोन ना जाए। वो पल है, याद है क्या जब पहली बार बंक किया था? डर लग रहा था पकड़े ना जाए, पर फिर आदत सी बन गई। वो प्रोजेक्ट फाइल पे वेरी गुड लिखवाने की जी जान कोशिश करना, पर गुड ना मिलने पे भी सबके साथ हंसना। जिसको बात करनी है क्लास के बाहर चला जाए, जिसको बात करनी है क्लास के बाहर चला जाए। जब गुस्से में टीचर चिल्लाए तो ब्रो चले क्या कह के खूब हंसी उड़ाए। रिजल्ट के वक्त गुस्सा बड़ा आया जब अरे यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा बोलने वाला सबसे ज़्यादा नंबर लाया। एवरी एंडिंग इज़ अ न्यू बिगनिंग। सही कहते हैं, इस स्कूल के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक ज़िंदगी जो यहाँ शुरू हुई थी यही ख़त्म हो जाती है। वो लम्हे, वो यादें यहाँ बने थे शुरू, यहाँ हुए और यहीं रह गए। रोते हुए लम्हों को याद करके हंसी आती है और हंसते लम्हे रुला जाते हैं। थैंक यू। A very good morning to all of you, respected teachers, seniors, and my dear friends. It's my pleasure that I am going to say thanks. Having a brilliant senior is motivating factor for us, and we are lucky that we have you as our senior. I would like to congratulate all our seniors for having their nice journey in the school. We all juniors think that our seniors have set a high benchmark of excellence. To reach that point, we need to work hard. Now, when you are going to pursue your dream career, we all are happy. But somewhere we have the pressure to be good as you were, to the junior as you were for us. As a student, you made our school proud. And now it's our responsibility to carry forward the legacy. We learned a lot from our seniors, like the art of making healthy interaction with everyone in the school. At last, I want to say to our seniors that our wishes are always with you all. We wish you well for your successful future. Thank you. Thank you for having with us and helping us in every situation and guiding us. Thank you. Life always gives us an opportunity to meet someone who influences us deeply. This pandemic has given us a chance to come closer, accept the challenges and difficulties, hold each other and support one another through prayers and small acts of kindness. As such, coming together face to face for building a day was difficult, but nevertheless, we grabbed this opportunity to virtually meet you on this digital platform. We have waited so long to have you all among us, and bid farewell. At last, the time has come. Before we say a goodbye, let's have a short time together to recall
You have just conquered one step, and there is so much more that you have to look forward to. Namely, your aspirations, your dreams, your goals, which are waiting on the other side of this long journey. We juniors wish you loads of success, a cup full of happiness, mountains of achievements, and good wishes to live your dream each and every moment. Thank you.